بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وارث چچا کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ آج پھر ملازمین کی سختی آئی ہوئی تھی۔ ہر ہفتے بعد وارث چچا حویلی کے تمام ملازمین کو ایک لائن میں کھڑا کرتے اور پورے ہفتے کے کاموں کا حساب کتاب کرتے۔ چچی آرام سے بیٹھ کر پھل کھا رہی تھیں۔ ملازمین کی ہونے والی بے عزتی سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ خوف زدہ چہروں کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ملازمین ہولے ہولے کام بھی رہے تھے، کیونکہ ان غریب لوگوں کو اس حویلی میں انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وارث چچا، چچی اور ان کی اولادیں حویلی میں کام کرنے والے ملازمین کو اپنی زر خرید غلام سمجھتے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر ملازم کی آج پھر سختی آ گئی تھی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی پر وارث چچا نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ تمام ملازم خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اچانک ہی میری کھڑکی کے بالکل قریب آ کر وارث چچا کا بڑا بیٹا عدنان کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے میں نے اپنا رخ پھیر لیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ انتہائی کمینی مسکراہٹ چہرے پر سجائے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ان چھوٹے چھوٹے ملازموں کے لیے تمہیں اپنے آنسو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے تو یہ ہمارے سروں پر چڑھ کر ناچنے لگتے ہیں۔ انہیں ان کی اوقات میں رکھنے کے لیے یہ سب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عدنان نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نفرت آمیز لہجے سے کہا۔ اپنے والدین کی طرح وہ بھی غریبوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے اسے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ مجھے ہمیشہ اس کی نظروں سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ جب بھی میرا اور اس کا آمنا سامنا ہوتا، انتہائی ہوس بھری نظروں سے میری طرف دیکھتا تھا۔ اسی وجہ سے میں اس سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتی، لیکن ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بالکل اس سے کٹ کر رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے چچا اور چچی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اپنی ماں کی تو شکل بھی مجھے یاد نہیں تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابا نے مجھے بہت محبت سے پالا تھا، یہاں تک کہ سوتیلی ماں کے ظالمانہ رویے کا سوچتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ لیکن میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 سال پہلے اچانک ہی ابا ایک ٹریفک حادثے میں ہم سے بچھڑ گئے۔ میری تو دنیا ہی اندھیری ہو گئی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ابا کے بغیر زندگی گزارنا پڑے گی۔ ابا اور وارث چچا ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ جب تک ابا زندہ تھے میں نے چچا کے پوشن کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ابا کے مرنے کے بعد سے اب مجھے مستقل طور پر اپنی حویلی چھوڑ کر چچا کے ساتھ رہنا پڑ رہا تھا۔ اس حویلی کا وہ حصہ جہاں میں نے اپنے ابا کے ساتھ بچپن گزارا تھا، اسے چھوڑتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس پر وارث چچا نے مجھے سمجھایا کہ تم کون سا کہیں دور جا رہی ہو، ایک ہی گھر میں رہ رہی ہو۔ ملازموں پر اتنا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے سر پر تمہیں چھوڑ دیا جائے، اس لیے تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ میں ان کی نیت سے واقف نہ تھی، اس لیے ان کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ وارث چچا نے دھوکے سے حویلی کا وہ حصہ جس کی ملکیت ابا کے نام تھی وہ بھی اپنے نام کر لیا تھا۔ اس ناانصافی اور دھوکہ دہی پر میں انہیں کچھ نہ کہہ سکی۔ عدنان تو نہ جانے کب کا یہاں سے جا چکا تھا، لیکن اس کی نظروں کا حصار مجھے اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس سے جتنا بھی بچنے کی کوشش کرتی پھر بھی اس سے آمنا سامنا ہو جاتا، اور پھر سارا دن میرا بہت بیزار گزرتا۔ نہ جانے مجھے عدنان سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی تھی۔ شاید وہ مجھے وقتاً فوقتاً ہراساں کرتا رہتا۔ اس کی وجہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اٹھا دوں، لیکن میں صرف ایسا سوچ ہی سکتی تھی۔ اس پہ عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ چچی کا رویہ بہت عجیب سا تھا۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی بات سے منع نہیں کیا تھا، لیکن کبھی کبھار پیار سے بات بھی نہیں کی تھی۔ میرا وجود ان کے لیے بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں اچھی طرح سے سمجھتی تھی کہ چچی کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں میرا ان کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس لیے وہ مجھے میری اوقات میں ہی رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ میں کبھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کر سکوں۔
चचा की बेटी रूबी मेरी हम उम्र थी और कुछ अरसा पहले तक हमारे दरमियान में अच्छी खासी दोस्ती भी थी, लेकिन अब तो वो मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। मैंने भी उसके बारे में तवज्जो देना छोड़ दी थी। बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन हवेली का बरसों पुराना निज़ाम अभी तक बरकरार था। शाम की अज़ान के फौरन बाद रात का खाना खा लिया जाता था। आज भी खाना खाने के बाद मुलाजमा के साथ कुछ देर तक मैं किचन में काम करती रही और फिर अपने कमरे में आ गई। कमरे की लाइट ऑन की तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि अदनान बहुत पुरसकून तरीके से मेरे बेड के साथ टेक लगाए नीम दराज था और इंतहाई कमीनी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उसकी निगाहों से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए मैंने इंतहाई गुस्से से पूछा। मुझे तो इस बात का इल्म तक नहीं था कि अब्बा जान ने ये कमरा तुम्हारे नाम लगा दिया है। इंतहाई संजीदा अंदाज से अदनान ने कहा। मैं जानती थी कि वो मुझे चिढ़ा रहा है। तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाज़त किसने दी थी? बराए मेहरबानी आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे के अंदर दाखिल होना तो दूर की बात है, दरवाजे तक भी मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके तंज को नज़रअंदाज करते हुए मैंने गुस्से से कहा, तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। मुझसे न जाने तुम्हें कौन सी दुश्मनी है। मेरी मोहब्बत भरी बात का जवाब भी इंतहाई नफरत से देती हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने लहजे को इंतहाई दुखी बनाते हुए अदनान ने इंतहाई मासूमियत से कहा। लेकिन मैं जानती थी वो ये सब ड्रामा कर रहा है। मुझे ना ही तुमसे कोई दुश्मनी है और ना ही कोई नफरत, लेकिन तुम अपने काम से काम रखा करो। मेरे बारे में तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंतहाई रूखेपन से मैंने जवाब दिया, तुम खुद को समझती क्या हो? मैं तुम्हें देख लूँगा। गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने मुझे धमकी दी और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया और लंबे लंबे सांस लेकर अपनी बेकाबू होती दिल की धड़कन को काबू करने की कोशिश करने लगी। मुझे अदनान बचपन से ही पसंद न था, लेकिन मैं न जानती थी कि अल्लाह ताला मुझे उसी के घर में लाकर फेंक देंगी। मैं जितना भी उससे बचने की कोशिश करती वो मेरे पीछे पीछे ही फिरता रहता था। बहुत बार मैंने सोचा कि मैं चचा और चची को अदनान की शिकायत लगाऊं। वो मुझे ना सिर्फ हरासा करता है बल्कि मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करने की धमकियां भी देता है। मुझे चच्ची पर हैरत होती थी, जिनके सामने वो मुझे इंतहाई हवस भरी नज़रों से देखता और ज़ुमानी फिक्रे कसता था। लेकिन चच्ची ने ना तो कभी उससे मना किया था और ना ही कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि वो अदनान की इन हरकतों पर तवज्जो देती हैं। यही सोचकर मैंने चचा और चच्ची से कोई बात नहीं की थी। अब्बा की वफ़ात के बाद न सिर्फ हवेली का सब इंतज़ाम बल्कि ज़मीनों और गांव के सब मामलात भी चचा के हाथ आ गए थे। जब तक अब्बा जिंदा थे कोई मसला नहीं था, लेकिन चचा की सख्त गिर तबीयत की वजह से हर शख्स उनसे नाला नजर आता था। लेकिन उनके सामने सर झुकाकर खड़े रहना हर शख्स की मजबूरी थी, क्योंकि वो अपने सामने निगाह उठाने वाले का बहुत बुरा हशर करते थे। जल्द ही उनका रोब व दबदबा सारे गांव पर फैल चुका था। गांव की औरतें हवेली में आती तो मेरे सामने अब्बा का जिक्र जरूर करती, जो गरीबों के हमदर्द और साथी थे। मैं उनके साथ हमदर्दी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। आधी रात का वक्त था। मैं गहरी नींद सो रही थी जब मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। इस वक्त कौन हो सकता है? हैरत से मैंने सोचा। इससे पहले कि मैं उठकर दरवाज़ा खोलती, अदनान की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। अदनान की आवाज़ सुनते ही खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी बड़ी जुर्रत भी कर सकता है। आधी रात के वक्त मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है और बगैर किसी खौफ के दरवाज़ा खोलने का हुक्म दे रहा है। खौफ के मारे मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। न जाने वो कितनी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। इंतहाई सर्द और धीमे लहजे से मुझे दरवाज़ा खोलने का कह रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी। शायद वो भी कोशिश कर रहा था कि कोई और उसकी आवाज़ ना सुन सके। न जाने कितनी देर तक वो दरवाजे पर खड़ा रहा और फिर मायूस होकर लौट गया।
میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ ایسی جرت بھی کر سکتا ہے، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چچا اور چچی سے عدنان کے بارے میں ضرور بات کروں گی۔ مجھے یقین تھا کہ چچا اسے سمجھائیں گے۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے عدنان انتہائی خوشیلی اور نفرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے پہلے بھی کوئی محبت نہ تھی، لیکن اب نفرت بہت بڑھ چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی ہوس بھری آنکھیں نوچ ڈالوں۔ میری زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں کیا لکھا ہوا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ ساتھ والے گاؤں کے چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے بھیجا تو چچا نے جلدی سے انکار کر دیا، جبکہ چچی تو بہت خوش تھیں کہ مجھ سے جان چھوٹ جاتی۔ چچا کے انکار کرنے پر وہ ناراض ہو گئی تھیں، جس پر چچا نے انہیں سمجھایا کہ اگر وہ میری شادی خاندان سے باہر کر دیتی ہیں تو میرے حصے کی سب زمین بھی دینی پڑے گی۔ یہ سن کر چچی بھی خاموش ہو گئی تھی، لیکن چچی نے صاف الفاظ میں چچا سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے کبھی اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ میں یہاں سے دور چلی جاؤں، جہاں پر میں سکون سے زندگی گزار سکوں۔ چچی کی بات سن کر چچا نے دکھ اور حیرت کا اظہار کیا۔ خدا جانتا ہے تمہیں کب عقل آئے گی۔ تمہارے آوارہ اور بدماش بیٹوں کو علاقے میں سے کوئی بھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہیں دے گا۔ مجبور اور بے بس لڑکی ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جیسے بھی حالات ہوں گے اسے گزارا کرنا پڑے گا، ہماری احسان مند رہے گی، اور تم ہو کہ کہہ رہی ہو کہ اسے اپنی بہو نہیں بنانا۔ چچا نے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن چچی اس بات کے لیے ہرگز بھی راضی نہیں تھی کہ ان کے دونوں بیٹوں میں سے کسی کے ساتھ بھی میری شادی ہو جائے۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی، کیونکہ عدنان اور اسامہ دونوں ہی مجھے سخت ناپسند تھے۔ جب چچا نے عدنان سے میری شادی کی بات کی تو اس نے بھی اپنی ماں کی طرح انکار کر دیا، یہاں تک کہ اسامہ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی اور مجھے انکار کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ ایک بات پر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ عدنان ہر وقت مجھ پر نگاہ جمائے بیٹھا رہتا، پھر بھی اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عدنان کے دوست کی شادی تھی، اس لیے وہ آج رات کے کھانے پر موجود نہیں تھا۔ اس کی غیر موجودگی سے مجھے بہت اطمینان حاصل ہو رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ اطمینان تو ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ رات گئی جب عدنان شراب کے نشے میں مست گھر میں داخل ہوا تو میرے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں بہت محتاط ہو گئی تھی۔ کمرے کے دروازے کے سامنے ایک بڑا سا لکڑی کا میز رکھ دیتی تاکہ اگر کبھی عدنان دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کرے تو بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ نشے میں مست ہو کر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں دروازہ کھول دوں ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اس صورتحال پر میں بہت گھبرا گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گیا اور پھر کسی ملازم نے اس کا بے ہوش وجود اٹھا کر اس کے کمرے تک پہنچا دیا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ بہت جلد مجھے یہ ٹھکانہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ عدنان کی دست درازیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ چچی سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان بنی بیٹھی رہتی۔ چچی جان بوجھ کر عدنان کو نظر انداز کرتی تھی، لیکن اب وہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے چچی سے عدنان کی شکایت لگائی تو وہ شدید غصے میں آ کر مجھے ہی برا بھلا اور بد کردار کہنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے ایسا کہیں گی۔ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو تو معصوم اور فرشتہ سمجھتی تھی اور مجھے بد کردار کہہ رہی تھی۔ اپنے لیے بد کردار کا الزام سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں چچا اور چچی کے ساتھ نہیں رہوں گی، بلکہ حویلی کے دوسرے حصے میں جو کہ میرے ابا کے نام پر تھا اس میں رہوں گی، جہاں میں نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا۔ لیکن اب اس حصے میں مجھے جانے کی اجازت بھی نہیں ملتی تھی، کیونکہ وہ عدنان اور اسامہ کے استعمال میں تھا۔ اس حصے میں عدنان اور اسامہ اپنے دوستوں کو مدعو کرتے اور رات گئی تک کھانے پینے کا انتظام اور تاش کھیلتے جاتے تھے۔
इब्तिदा में मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी किसी बात को दोनों भाइयों ने कोई अहमियत नहीं दी थी। दोपहर का वक्त था। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी जब अचानक ही दरवाज़ा खोलकर अदनान अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही मैं घबरा कर उठ बैठी थी और अपनी चादर फैलाकर अपने इर्द गिर्द रख ली। तुम क्या समझती हो कि तुम बहुत बहादुर हो, मेरा मुकाबला कर सकती हो? कमरे में दाखिल होते ही अदनान ने इंतहाई गुस्से से पूछा। मैंने तुमसे कब कहा है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मुकाबला करना चाहती हूँ? अपने आप को पुरइत्माद ज़ाहिर करने के लिए मैंने इंतहाई गुस्से से कहा, लेकिन मेरा दिल खौफ से बहुत तेज तेज धड़क रहा था। कब तक मेरी बात नहीं मानोगी? आखिर एक दिन तुम्हें मेरी हर बात मानना पड़ेगी। तुमने अम्मा को मेरी शिकायत लगाई है, अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, धमकी देते हुए अदनान ने कहा, और जिस तरह गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था इसी तरह बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने आंखें बंद करते हुए शुक्र अदा किया। न जाने उसे देखते ही क्यों मैं खौफ से बेकाबू होने लगी थी। मैं जानती थी कि उसने जो कुछ कहा है वो उस पर अमल करने की कोशिश भी करेगा। एक बात का तो मुझे इल्म हो चुका था कि चच्ची अदनान को कभी भी किसी बात से मना नहीं करेंगी और उसकी हर गलती का इल्ज़ाम मेरे सर पर लगा देंगी। उस रोज़ के बाद से मैं ज़्यादा मोहतात रहने लगी थी। आधी रात का वक्त था जब खटके की आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। कमरे में छोटा बल्ब ऑन था, इसलिए सब कुछ वाज़े दिखाई दे रहा था। आवाज़ किस तरफ से आई थी कुछ पता नहीं चल रहा था। खौफज़दा निगाहों से मैं इधर उधर देखने लगी। एक बार फिर आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की सिमत में मैंने देखा तो हैरत और खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। खौफ के मारे मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए, क्योंकि मेरे कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी। चाबी घुमाने की आवाज़ पर शायद मेरी आंख खुली थी। कोई बहुत एहतियात से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। आज तो मुझे अपना आप बचाना बहुत मुश्किल लग रहा था। अपनी बेबसी पर मुझे रोना आ रहा था, लेकिन उस वक्त रोने की बजाय अकल से काम लेने की ज़रूरत थी। खुद को एक बड़ी सी चादर में छुपाकर मैंने जूते पहने और एक नज़र अपने कमरे पर डाली। कमरे की वाहिद खिड़की जो कि घर की पिछली तरफ खुलती थी, जिसका शीशा भी टूटा हुआ था। पुराने तर्ज की बनी हुई उस खिड़की में एक इंसान के बाहर निकलने की गुंजाइश थी। कुछ भी सोचे बगैर मैंने अल्लाह का नाम लिया और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। अचानक से ज़मीन पर गिरने की वजह से मेरी दोनों टांगों पर शदीद चोट आई थी, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी इज्जत बचाने की फिक्र थी, इसलिए अंधाधुंध भागने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे कमरे का ऑटोमेटिक लॉक अब तक टूट चुका होगा। मेरे पास वक्त बहुत कम था। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस हवेली से बाहर निकल जाना चाहिए था। हवेली की ऊंची दीवार को क्रॉस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन खुदा का शुक्र था कि इस मुश्किल वक्त में मेरा दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा था। इस अंधेरे में एक दरख्त के तने पर चढ़ते हुए मैं हवेली की दीवार पर चढ़ गई और फिर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। अचानक ज़मीन पर गिरने की वजह से बहुत देर तक तो मैं अपनी टांगों पर खड़ी ही नहीं हो सकी थी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं हिम्मत जमा करते हुए खड़ी हुई और एक सिम तोड़ने लगी। मैं जानती थी कि अदनान ने सारी हवेली में मेरे घर से भाग जाने का शोर डाल दिया होगा और अब चचा मुलाजमों के साथ मिलकर पूरे गांव में मेरी तलाश शुरू कर देंगे। मुझे किसी महफूज मकाम की तलाश थी। रात के अंधेरे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं भागकर किस तरफ जा रही हूँ। गांव की अकलौती मस्जिद का दरवाज़ा देखकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए और मैं फिर इधर उधर देखते हुए मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था। उस मस्जिद के बारे में बहुत सी बातें मशहूर थीं। यहाँ के लोग कहते थे कि इस मस्जिद में जिन्नात भी नमाज अदा करते हैं। यहाँ तक कि अगर मौलवी साहब मौजूद ना हो तो जिन्नात की तरफ से आज़ान भी दी जाती है। रात के वक्त अक्सर लोग अपने बच्चों को इस मस्जिद की तरफ नहीं आने देते थे, क्योंकि बाज़ बच्चों के डर जाने के वाक़यात भी मशहूर थे। मुझे इस वक्त मस्जिद से ज़्यादा महफूज मकाम कोई भी महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए मस्जिद के कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। मेरा दिल खौफ से बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि कानों के रास्ते बाहर निकल आएगा।
बहुत खामोशी के साथ मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। चचा और चची के रवैये के बारे में सोचने लगी। वो दोनों खुद भी साहिब औलाद थे, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह ताला ने मेरे लिए रहम नहीं डाला था, बल्कि मैं तो कहती थी कि मोहर लगाती थी, इसलिए उन्हें किसी पर रहम नहीं आता था। जब मैंने चचा से अपनी हवेली में वापस जाने की बात की तो चचा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और साफ अल्फाज में कह दिया कि अब इस हवेली के मालिक वो खुद हैं, क्योंकि अब्बा के मरने के बाद से वो मेरा हर तरह का ख्याल रख रहे थे, मेरी हर ज़रूरत पूरी कर रहे थे। इसलिए बदले के तौर पर उन्होंने वो हवेली रख ली थी, जबकि मैं उनसे ये पूछना चाहती थी कि मेरे अब्बा की वो ज़मीनें जिनकी फसलें बेचकर बेशुमार रकम जमा कर चुके हैं, उसका क्या हिसाब होगा। लेकिन खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। अपने हालात के बारे में सोचते हुए मैं मुसलसल रो रही थी। मुसलसल रोने की वजह से दिल कुछ हल्का हो गया था, लेकिन अब मुझे अपने आसपास से खौफ महसूस होने लगा। अचानक ही मुझे मस्जिद के बाहर से बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल की धड़कन ही बंद हो जाएगी। मुझे यकीन था कि बहुत जल्द ही अदनान या चचा के मुलाजिम मुझे तलाश कर लेंगे। मुझे आंखों के आगे अंधेरा महसूस होने लगा। मस्जिद के कमरे में घड़ी लगी हुई थी, जिस पर दिखाई देने वाले वक्त के मुताबिक अभी फजर की अज़ान में बहुत वक्त बाकी था। इसलिए मुझे इस बात का यकीन था कि मस्जिद से बाहर मौलवी साहब या कोई नमाजी नहीं, बल्कि मेरी ही तलाश की जा रही है। किसी खसा रसीदा पत्ते की तरह मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। अल्लाह ताला के घर में सजदे में सर रखकर मैं अल्लाह से मदद मांगने लगी। अल्लाह के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। बहुत देर तक सजदे में गिरकर मैं अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत की दुआ मांग रही थी। एकदम से मेरे दिल में सुकून भर गया था। अल्लाह के सामने अपने सब मसले रखने के बाद मैं बहुत हद तक पुरसकून हो गई थी। मुझे अल्लाह ताला पर यकीन था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। बाहर से बातों की आवाज़ें आना बंद हो गई थी, जिस पर मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि वो मेरे तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि मैंने मस्जिद में पनाह ली है। अपनी इज्जत के बच जाने पर मैं जितना भी शुक्र अदा करती कम था, इसलिए मैं बार बार सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी और उसका फजलो करम मांग रही थी। इबादत से फारिग होकर मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई और आने वाले हालात के बारे में सोचने लगी। एक बात का तो मुझे इल्म था कि सुबह तक सारे इलाके में ये खबर फैल चुकी होगी कि मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गई हूँ। लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होंगे। हर कोई यही समझेगा कि मैं किसी लड़के के साथ घर से भाग गई हूँ। चची और अदनान तो हर बात बढ़ा चढ़ा कर बता रही होंगी। इसलिए अब गांव या हवेली वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन मैं कहाँ जा सकती हूँ? इस भरी दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए न जाने कब मैं नींद में खो गई। जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मस्जिद के इस कमरे में मैं अकेली नहीं बल्कि कोई और भी मौजूद है। खौफज़दा निगाहों से इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक और फिक्र मुझे सताने लगी थी कि फजर की नमाज का वक्त हो रहा है और मुझे यकीन था कि कुछ ही देर में मौलवी साहब आते होंगे। अजान की आवाज़ सुनने के बाद नमाजी भी मस्जिद की तरफ चल पड़ेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अल्लाह ताला के घर में आकर मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था और मैं खुद को महफूज भी समझ रही थी। लेकिन अब ये ठिकाना भी मुझे छोड़ना पड़ रहा था। अगर कोई शख्स भी मुझे देख लेता तो ये खबर हवेली तक पहुंच जाती। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी, इसलिए उठकर खड़ी हो गई। किसी शख्स के भी आने से पहले मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी। रुक जाओ लड़की, इस अंधेरे में कहाँ जा रही हो? अचानक ही एक मजबूत मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। जल्दी से गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो एक नौजवान बिल्कुल मेरी मुखालिफ सिमत में मस्जिद के कोने में बैठा हुआ था। अचानक से एक नौजवान लड़के को देखकर मुझ पर खौफ तारी हो गया था और मैं खौफ से लरसने लगी। तुम कौन हो और रात के इस पहर में यहाँ मस्जिद में क्या कर रही थी? उस नौजवान ने मेरी तरफ देखते हुए संजीदगी से पूछा। मैं उसकी तरफ हैरत से देख रही थी क्योंकि वो बहुत अजीब लिबास में मलबूस था। मैंने कभी किसी शख्स को
ऐसे लिबास में मलबूस नहीं देखा था। इंतहाई रंगीन और ढीला ढाला लिबास था। शायद पुराने ज़मानों में लोग ऐसे ही लिबास पहनते हों। उसके अजीब व गरीब लिबास की तरफ देखते हुए मैंने दिल ही दिल में सोचा, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम कौन हो और मस्जिद में क्या कर रही थी। मेरी तरफ से जवाब ना पाकर उसने एक बार फिर पूछा। वो मैं मस्जिद में छुप गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उससे मैं क्या जवाब दूं। टूटे फूटे अल्फाज में मैंने जवाब दिया, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें मस्जिद में क्यों आना पड़ा, किससे छुप रही थी। सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखते हुए उसने पूछा। इससे पहले कि मैं उससे कोई जवाब देती, इंतहाई गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। शायद तुम रात के अंधेरे में घर से भाग रही थी और जिस शख्स के साथ तुम भाग रही थी वो नहीं आया होगा और अब तुम्हारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मस्जिद में पनाह ले ली है। उस अजनबी नौजवान के इल्ज़ाम लगाने पर मैं तड़प कर रह गई, इसलिए जल्दी से कहा, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैं भला क्यों किसी लड़के के साथ घर से भागूंगी। मैं तो अपनी इज्जत बचाकर घर से भागी थी, क्योंकि मैं तो अपने घर के अंदर भी महफूज नहीं थी। इंतहाई दुख और बेबस लहजे से मैंने कहा। उसे अपने अल्फाज की सख्ती का अंदाज़ा हो गया था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के असरात दिखाई देने लगे। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, तुम अपने घर में क्यों गैर महफूज थी? हैरत का इजहार करते हुए उसने पूछा। मुख्तसर लफ्ज़ों में मैंने उसे अदनान के बारे में बता दिया। तुमने बहुत अच्छा किया, वो हवेली छोड़ दी, वो तुम्हारे लिए महफूज पनाहगाह नहीं थी। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, लेकिन अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे इसका इल्म नहीं है। बेबसी से मैंने कहा। मस्जिद का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो खौफ और हैरत से मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। अगर मैं मस्जिद में अकेली होती तो कह सकती थी कि मैं अदनान के खौफ से भागकर मस्जिद में छुप गई, लेकिन अब मैं मस्जिद में अकेली नहीं थी। मैं कुछ भी कहती रहती, किसी ने भी हमारी बात पर यकीन नहीं करना था। लेकिन मेरे बरक्स वो नौजवान बहुत इत्मीनान से खड़ा था। तुम डरो मत, कुछ भी नहीं होने लगा। हाथ के इशारे से उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन मैं जानती थी कि मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए तो हमें एक साथ देकर न जाने क्या सोचेंगे। अचानक ही उस नौजवान ने हाथ बुलंद किया तो उसके हाथ में एक काले रंग की चादर आ गई। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। उस चादर को ओढ़कर तुम एक कोने में बैठ जाओ, ये मखसूस चादर है, इसे जो भी ओढ़ लेता है वो फिर किसी को दिखाई नहीं देता। तुम बिल्कुल महफूज रहोगी, किसी को भी तुम्हारी मौजूदगी का इल्म नहीं होगा। चादर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उस नौजवान ने कहा। मैंने जल्दी से उसके हाथ से चादर ले ली और अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेटकर मस्जिद के एक कोने में बैठ गई। मैंने ऐसे कोने का इंतखाब किया था जिस पर मुझे यकीन था कि इस तरफ कोई शख्स नहीं होगा। मौलवी साहब मस्जिद के कमरे में दाखिल हुए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। जब मौलवी साहब को मैंने देखा तो वो अपने कामों में मसरूफ थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके अलावा कमरे में कोई और भी मौजूद है। यहाँ तक कि उन्हें उस नौजवान की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हो रहा था। मौलवी साहब ने आज़ान दी और उसके बाद नमाजियों का इंतज़ार करने के लिए कमरे से बाहर चले गए। बाहर से बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। शायद नमाजी आना शुरू हो गए थे। कुछ देर बाद मौलवी साहब कमरे के अंदर दाखिल हुए तो कुछ और लोग भी उनके साथ थे। बाजमात नमाज अदा की गई। मुझे किसी ने भी नहीं देखा था, लेकिन एक नमाजी ने नमाज पढ़ने के बाद बाकी लोगों को बताया कि चौधरी वारिस की भतीजी रात के अंधेरे में घर से भाग गई है। चौधरी वारिस और उसका बेटा अपने पालतू कुत्तों के जरिए उस लड़की को रात भर तलाश करते रहे हैं। अपने बारे में लोगों की बातें सुनकर न चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। कोई कहता कि उस लड़की ने बहुत अच्छा किया, वारिस चौधरी के जुल्म से तंग आकर भाग गई होगी, लेकिन ज्यादातर का यही ख्याल था कि मैं किसी नौजवान लड़के के साथ घर से भाग गई हूँ। आहिस्ता आहिस्ता नमाजी वापस चले गए, यहाँ तक कि मौलवी साहब भी मस्जिद का दरवाज़ा बंद करके जा चुके थे। इस दौरान मैंने उस नौजवान पर नज़र रखी हुई थी। नमाज अदा करने के बाद वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक कोने में खामोशी से कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। कुछ देर बाद उसने कुरान पाक बंद किया,
हाथ उठाकर दुआ मांगने के बाद कुरान पाक को मखसूस जगह पर रख दिया और मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। अब तुमने क्या सोचा है कि तुम क्या करोगी? मेरी तरफ देखते हुए उसने पूछा। मुझे कुछ इल्म नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। ला इल्मी का इजहार करते हुए मैंने जवाब दिया, एक बात का तो तुम्हें इल्म हो ही गया है कि तुम्हारे बारे में सब क्या सोच रहे हैं, इसलिए अगर तुम इस वक्त अपने घर वापस भी जाती तो तुम्हें कबूल नहीं किया जाएगा बल्कि कसूरवार समझा जाएगा। बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलो, जब हालात ठीक हो जाएं तो वापस चली आना। उसने मशवरा देते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। अगर मैं तुम पर एतबार कर लूं और तुम भी मुझे धोखा दे दो तो फिर मैं क्या करूंगी? उसकी तरफ देखते हुए इंतहाई मायूसाना लहजे से मैंने कहा था, मेरा नाम शहजादा मुकर्रब है। अगर तुम मुझ पर यकीन करती हो तो फिर मेरे साथ चली आओ, मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अपना नाम बताते हुए उसने कहा था, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? इंतहाई खौफजदा लहजे से मैंने उससे पूछा। उस वक्त तो मैं तुम्हें अपने घर ही लेकर जा सकता हूँ जहाँ पर मेरा सारा खानदान रहता है। उस घर में मैं अकेला नहीं रहता। उसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। ये जानकर वो मुझे अपने घर लेकर जाएगा, मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो कौन था और कहाँ रहता था, मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। उस वक्त तो मेरी हैरत की कोई इंतहा ही न रही जब वो गांव की तरफ जाने की बजाय जंगल की तरफ चल पड़ा। कि तुम किस तरफ जा रही हो? तुम्हारा घर किधर है? अपने कदम रोकते हुए मैंने उससे पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ, मेरा घर इसी तरफ जंगल में है। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने जवाब दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। मुझे उससे खौफ महसूस होने लगा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम जंगल में कैसे रह सकते हो? खौफजदा लहजे से मैंने कहा था। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझ पर यकीन रखो। मेरे खौफ को महसूस करते हुए उसने तसल्ली देने की कोशिश की। चंद कदम पीछे चलकर वो बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। अचानक ही उसने एक ऐसी हरकत की जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। अपना हाथ उठाकर जल्दी से उसने मेरे सर पर रख दिया और फिर मुझे कुछ खबर नहीं कि क्या हुआ। अचानक ही सब मंजर बदल गया था। चंद लम्हे पहले तो मैं मस्जिद के करीब खड़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर मस्जिद का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि ये तो एक ऐसा इलाका था जो आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। पहाड़ दिखाई दे रही थी, लेकिन बहुत फासले पर थी। जिस जगह पर हम खड़े थे दूर दूर तक हरियाली और मैदान दिखाई दे रही थी। हर तरफ बड़े बड़े मकानात बने हुए थे। एक बात जो सबसे हैरत अंगेज थी, इधर उधर मर्द और औरतें काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये औरतें और मर्द बहुत अजीब और गरीब जिसामत के मालिक थे। कोई बहुत लंबा और काला था, किसी के हाथ पांव बहुत लंबे लंबे और किसी के दांत बहुत लंबे थे। गर्ज ये कि हर कोई अजीब शक्ल सूरत वाला था। ऐसी खौफनाक शक्ल के लोग देखकर तो मैं बहुत डर गई और खौफज़दा निगाहों से शहजादा मुकर्रब की तरफ देखने लगी। तुम्हें एक बात जानकर बहुत हैरत होगी, शायद डर भी जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की। शहजादा मुकर्रब ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। जवाब देने के बजाय मैं हैरत और खौफ से उसकी तरफ देखती रही। तुम्हें हम सब बहुत अजीबोगरीब दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हम तुम्हारी तरह इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं, और इस वक्त तुम जिन्नात के इलाके में आई हो। शहजादा मुकर्रब ने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया था। ये जानकर कि मैं इस वक्त जिन्नात के दरमियान हूँ, मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। अपनी टांगों पर खड़ा रहना अभी मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। ये जिन्नात तो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे या मुझे जला देंगे। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इंतहाई खौफज़दा लहजे से मैंने कहा। मेरी बात सुनकर शहजादा मुकर्रब मुस्कुराने लगा। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम मेरी मेहमान हो, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए कोई अच्छा फैसला करूंगा। शहजादा मुकर्रब मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे दिल को किसी तौर पर चैन नहीं आ रहा था। मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गई थी।
अचानक ही कुछ बच्चे और औरतें मेरे इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए और आदम बू के नारे लगाने लगे। उन अजीबो गरीब और खौफनाक शक्ल के लोगों को देखकर मेरे दिल की हालत बहुत अजीब हो रही थी। शहजादा मुकर्रब मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और फिर न जाने कौन सी जुबान में उन्हें कुछ कहने लगा। वो जुबान मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन इस बात का अंदाजा हो गया था कि शहजादे के कहने पर लोग मुझसे दूर हो गए, लेकिन अब भी मुझे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। मैंने अपने कबीले के तमाम लोगों को दरबार में जमा होने का हुक्म दे दिया था। मैं अपने मेहमान की हैसियत से तुम्हारा तारुफ करवा दूंगा, फिर कोई भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, बल्कि सब तुम्हें अपना मेहमान समझते हुए ख्याल करेंगे। मेरी खौफजदा हालत को देखते हुए शहजादा मुकर्रब ने जल्दी से कहा। मेरा सर चकरा रहा था, जमीन और आसमान घूमते हुए महसूस हो रहे थे। करीब था कि मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती। अचानक ही मेरे सामने एक कुर्सी आ गई और लड़खड़ाते हुए मैं उस पर जा बैठी। मैं जब तुमसे कह रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, फिर क्यों परेशान हो रही हो? मेरी हालत को देखते हुए शहजादा मुकर्रब ने गुस्से से कहा। उसे शायद इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही। अब तक जो कुछ मेरे साथ हो चुका था, मैं भला कैसे किसी अजनबी पर एतमाद कर सकती थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि शहजादे ने मुझसे कहा कि अब तुम खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ अपने महल में लेकर जा रहा हूँ। मेरे कबीले और इलाके के लोग दरबार में मेरा इंतजार कर रहे हैं। शहजादे मुकर्रब ने कहा और आगे बढ़कर जल्दी से मेरे सर पर हाथ रख दिया। जब मैंने आंखें खोली तो एक बार फिर मंजर बदल चुका था। मैं शहजादे के साथ एक बहुत बड़े तख्त पर खड़ी थी, जिस पर मैं और सिर्फ शहजादा मुकर्रब थे, बल्कि कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल सामने ही बड़ी तादाद में शहजादे की रियाया मौजूद थी, जिन्होंने सर झुकाकर अपने शहजादे का इस्तकबाल किया था। शहजादे ने सबसे पहले आगे बढ़कर बादशाह सलामत को सलाम अर्ज किया और फिर मलिका का हाथ चूमा। अपने वालिदैन की मौजूदगी में मैं आप सबको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ, ये आदमजादी मेरी मेहमान है। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आप सबकी भी मेहमान है। सब ने इसका बहुत ख्याल रखना है। ये सिर्फ चंद दिनों के लिए ही हमारे पास आई है, बहुत जल्द अपनी दुनिया में वापस लौट जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इस दुनिया से वापस जाए तो बहुत अच्छी यादें लेकर जाए, जो हमेशा उसके जहन में अच्छी याद बनकर महफूज रहे। मजमे की तरफ देखते हुए शहजादे ने ऐलान करते हुए कहा। शहजादे का ऐलान करते ही सारा मजमा हाथ हिला हिला कर न जाने क्या कहने लगा। उनकी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो सब शहजादे के साथ खड़े हैं। उन्हें शहजादे की इस बात पर कोई एतराज नहीं है। शहजादे ने बादशाह और मलिका से मेरा तारुफ करवाया। वो भी बहुत खुशी से मुझे मिले। एक बात मैं बहुत देर से देख रही थी कि यहाँ पर सबकी शक्लें बहुत अजीब और गरीब और खौफनाक थीं, लेकिन शहजादा मुकर्रब तो इंसानी शक्ल में और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। दरबार खत्म करने के बाद शहजादा मुझे अपने महल में ले आया। ऐसा महल तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। शहजादे के बहुत सारे बहन भाई थे, जो सभी हम शक्ल और मेहमान नवाज थे। मैंने जिन्नात के बारे में यही सुना था कि बहुत गुस्से वाले और ताकतवर होते हैं, यहाँ तक कि बहुत शर पसंद भी होते हैं। मेरे ख्यालात सुनने के बाद मलिका हंसने लगी और मुझे हंसते हुए कहा कि इंसानों की तरह जिन्नात में भी अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। नेक और मोमिन जिन्नात अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं और शैतान के हथकंडों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल इंसानों की तरह ही कुछ जिन्नात भी राह रास्त से भटक जाती हैं, जो कि इंसानों को तंग करने का बायस बनते हैं। लेकिन सिर्फ चंद शैतानों की वजह से हमारे बारे में ऐसा मशहूर हो चुका है। मलिका ने मुझे समझाया तो मैं उनकी बात सुनकर कुछ शर्मिंदा हो गई थी। बहुत रोज गुजर चुके थे। मैं यहाँ पर अपने आप को बहुत अजनबी महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने शहजादे से यहाँ से वापस जाने की इजाज़त चाही, जिस पर शहजादे ने मेरे साथ अपनी 2 ताकतवर ख़वातीन मुलाज़मा को भेजा। शहजादे ने मुझसे कहा था कि ये दोनों तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगे, जब तक तुम चाहोगी तुम्हारे साथ रहेंगे। इसे हमारी तरफ से तोहफा समझ लेना, उनके जरिए तुम अपने दुश्मनों पर काबू पालोगी। मेरे लिए शहजादे का ये तोहफा बहुत कीमती था। उन दोनों के साथ मैं अपनी हवेली में आ गई।
दोपहर का वक्त था। चचा और चची तो घर पर मौजूद थे, लेकिन अदनान और उसामा इस वक्त घर पर नहीं थे। अचानक से मुझे हवेली में देखकर चचा और चची परेशान हो गए और हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। मैं उन्हें तन्हा दिखाई दे रही थी। मेरे साथ शहजादे की ताकतवर मुलाजमाएं उन्हें दिखाई नहीं दे रही थीं, क्योंकि जिन्नात को देख लेना इंसानी आंख के लिए मुमकिन नहीं है। जब तक जिन्नात खुद ना चाहें, वो इंसानों को दिखाई नहीं देते। इसलिए वो दोनों भी मुझे तन्हा समझ रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हवेली में वापस आ गई? हमारी इज्जत का जिनासा निकालने के बाद तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें इस घर में जगह मिल सकती है? मुझे देखते ही चचा गुस्से से कहने लगे। चची भी खूनख्वार निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। आप कौन होते हैं मुझसे ये पूछने वाले कि मैं क्यों आई हूँ? जब आपके घर और आपकी चारदीवारी में मैं महफूज नहीं थी, तब आप कहाँ थे? चचा के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए मैंने इंतहाई तंजिया लहजे से पूछा। मेरी बात सुनकर चची कुछ घबरा गई थी। ये बकवास कर रही है। अपने जिस आशिक के साथ भाग कर गई थी, इसने उसे घर से निकाल दिया होगा, इसलिए वापस आ गई है। और मुझे लगता है इसका दिमाग भी खराब हो चुका है, उल्टी सीधी बातें कर रही है। हाथ में नचाते हुए गुस्से से चची ने कहा, ना ही मेरा दिमाग खराब हुआ है और ना ही मैं किसी के साथ भाग कर गई थी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे यहाँ से किसने भागने पर मजबूर किया था। चची की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए मैंने कहा, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हर शख्स हमें कमजोर, मजबूर और बेबस समझ रहा है। यहाँ वापस आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को भी अपनी इज्जत के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। चचा ने गुस्से से कहते हुए मेरी तरफ कदम बढ़ाए और फिर जल्दी से मुझे गर्दन से दबोच लिया। वो शायद मुझे जान से मार देना चाहते थे। मेरी हिफाजत पर मामूर दोनों ताकतवर जिन्नात औरतों ने एक ही झटके में चचा को दूर फेंक दिया। हैरत से चचा और चची मेरी तरफ देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस कदर ताकतवर हो सकती हूँ। उनकी हैरत पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। मुझ पर हमला करने से पहले या मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले एक बात जहन में बिठा लीजिएगा कि अब मैं किसी को माफ नहीं करने वाली। मेरे बाप की जमीन और हवेली जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है, वो आराम से मेरे हवाले कर दीजिएगा, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। चचा और चची को धमकी देते हुए मैं अपने हिस्से की तरफ आ गई, जिस पर उसामा और अदनान ने कब्जा किया हुआ था। मुलाजमीन को मैंने हवेली की सफाई का कहा और आराम करने लगी। दिल ही दिल में मैं शहजादा मुकर्रब की शुक्रगुजार हो रही थी, जिन्होंने मुझे इस कदर हौसला अता किया था। अगर वो अपनी बहादुर मुलाजमाओं को मेरे साथ ना भेजते तो मैं किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अदनान तनतनाता हुआ दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो करीब आता, किसी अनदेखी कुव्वत ने उसे उठाकर जोर से पटक दिया था। तुम मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कैसे दाखिल हुए? गेट पर खड़े हो जाओ और मुझसे इजाजत तलब करो। अगर मैं तुम्हें अपने घर के अंदर आने की इजाजत दूं, तब ही तुम अंदर आ सकते हो, मैंने इंतहाई गुस्से से कहा। मेरी बात सुनकर तो अदनान गुस्से से पागल होने लगा। अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर मुझ पर तान ली। वो मुझ पर गोली चलाने लगा, लेकिन उस वक्त तो उसकी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं, जब उसके हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल से बारूद भरी गोली के बजाय पानी निकलने लगा। ये सब मंजर देखकर मुलाजिम तो हंसने लगे। अदनान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने उसे साफ अल्फाज में बता दिया था कि अगर उसने मुझे तंग करने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन शायद उसे मेरी बात समझ नहीं आई थी। इसलिए जब मैं रात को आराम कर रही थी तो मुझे जान से मार देने की गर्ज से वो एक बार फिर मेरे घर में दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, मेरे दोनों ताकतवर साथियों ने उसे जमीन से उठाया और उड़ते हुए छत पर ले गई और फिर जोरदार धक्का देकर उसे जमीन पर नीचे फेंक दिया। उसकी चीखों की आवाजें सुनकर सब जमा हो गए थे। छत से नीचे गिरने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हुआ था और उसकी बहुत सी हड्डियां भी टूट चुकी थीं। उसकी हालत देखकर चच्ची तो मुझे बददुआएं देने लगी। जल्द ही ये खबर पूरे इलाके में फैल गई थी कि मैं घर वापस आ गई हूँ और अब डट कर मुकाबला कर रही हूँ।
लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी कि न जाने मैं काला इल्म सीख कर आई हूँ जिसके जरिए मैं अब अपने दुश्मनों से बदला ले रही हूँ। लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मैं तो सिर्फ अपना हक वापस लेना चाहती थी। अदनान का इंजाम देखकर मुझे दिली सुकून महसूस होता था। उसने मुझे बहुत बेसुकून किया था। अब माजूर और मजबूर इंसान की तरह बिस्तर पर पड़ा रहता। हर वक्त चची उसकी खिदमत में लगी होती और मुझे बद्दुआएं देती रहती। लेकिन अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मैंने चचा से साफ अल्फाज में कह दिया था कि अगर उन्होंने मेरे बाप की ज़मीन के कागजात मेरे हवाले ना किए तो उनके किसी भी नुकसान के जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। जब मैंने चचा को चची और अदनान की हरकतों के बारे में बताया तो वो बहुत शर्मिंदा हुए थे। मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे घर में ही तुम गैर महफूज होगी। तुम मेरी बेटी हो, लेकिन अगर तुम मुझे पहले बता देती कि अदनान तुम्हें हरासा करता है तो मैं इसका कोई बंदोबस्त करता, लेकिन तुमने मुझे बताने में देर कर दी। चचा ने शर्मिंदा लहजे से कहा, इतना तो मुझे भी इल्म था कि ज़मीन जायदाद से चचा को बहुत प्यार हो सकता है, लेकिन वो इस कदर नहीं गिर सकते कि अपनी ही औलाद को जलील और रुस्वा कर सके। मैंने चचा को तो माफ़ कर दिया था, लेकिन चची और अदनान को कभी माफ़ न कर सकी। मैंने चचा से तमाम प्रॉपर्टी के कागजात वापस ले लिए। शहजादा मुकर्रब के कहने पर ही मैंने दूसरे गांव के चौधरी साहब के बेटे सफदर चौधरी, जो कि मेरा ही हम उम्र था, शादी कर ली थी। मेरी जिंदगी जो अब्बा के मरने के बाद बहुत बेसुकून हो चुकी थी, अब सब कुछ बदल चुका था। मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून था, क्योंकि सफदर चौधरी एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ नौजवान था। एक लड़की के हाथों अपनी टांगे और बाजू तुड़वाने के बाद अदनान में पहले जैसा दम खम नहीं रहा था। अब इलाके में कुछ सुकून आ चुका था, क्योंकि वारिस चचा अपने जिन बेटों के बलबोते पर इंसानों को इंसान नहीं समझते थे, वो तो खुद भी बहुत बुज़दिल और कमज़ोर थे। वक्त और हालात ने सब कुछ बदल दिया था, और ये सब कुछ उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन थी। पुराने वाक़यात को याद भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद को अपने शौहर की ज़िंदगी में मसरूफ़ कर लिया। मेरे लिए सब कुछ सफदर चौधरी ही था। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी जिसने मेरे लिए बेहतरीन शरीके हयात का इंतखाब किया था। मैं अपनी हर नमाज के बाद शहजादा मुकर्रब के लिए ज़िंदगी में खुश और खुर्रम रहने की दुआएं भी मांगती थी। वो मेरा मोहसिन था। अगर वो मेरा साथ ना देता तो न जाने मैं कहाँ धक्के खा रही होती। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।